All right, guys, welcome to another episode of Expert Expats. Guys, we have had a crazy IPL season going on. We have all the things. We have a 14-year-old debuting in IPL. We have RR who is bottling all their chases, last three chases. We had super over as well after so many years, and everything is happening, guys. And finally, CSK, who was always on the top of the table, are on the bottom of the table now somehow, and they can't even win one game now. Seems like. So yeah, guys, welcome to another episode. I am Keyur Pandya from Berlin, Germany. We have Shoaib and Arnav on the panel today. So let's go to Arnav first. Arnav, did you watch any game this week or today's game? What do you think? I did not watch today's game, but I did watch some games this week. I watched yesterday's Yeah. how Hazel God saved us. So what do you think about the previous game? The last game, Yeah. yeah, it's just Hazelwood, Kunal Pandya, everybody contributed with the ball very well, and like RR chokes. It's just, it's just Captain Riyan Parag at its best. There is this meme. वो अपने वो एक परफ्यूम के एड वाला मीम नहीं देखा हाँ कि गेम्स तो मतलब पॉइंट्स तो सारे चले गए, तुम्हारा एटीट्यूड तो उधर ही है. हाँ हाँ वो देखा मैंने, वो मीम देखा था शायद. Yeah. So yeah, I mean like 12 balls, 18 runs to win, and how can they even, and Drew Jurel hitting like 24 runs to Bhuvneshwar Kumar in the previous over. So I thought it was cruising, and like three times this has happened now, and we have seen Jurel just like battling in the nets and showing that he's practicing even more, and then again this situation comes, and again. And it was a unfortunate out, by the way. He just got the bottom of his bat nicked and caught behind. But again, like I don't know what's going on with Ara's mentality. And even if Sanju Samson is fit, I don't think they are winning. Like I don't think. Hello, Harsh. Yeah, we can hear you. Yeah, in transit, but after watching CSK's performance, I don't want to show my face. Yeah, okay. So we have CSK fan. So let's ask the CSK fan. How was the Oh wow. game tonight, or what do you think? Anything about CSK so far this season? Like, it has to be a mix of things, but I think the batting has failed miserably. I don't know what was the thought with the batting mindset. I eventually thought that we had good openers. We had a backup opener in Rachin Ravindra. Yeah. I don't know what happened with Devon Conway also. They're not playing him. Uh, then same thing with Rahul Tripathi, Deepak Hooda, Vijay Shankar, Devol Brevis. It's an unending story. The batting has failed miserably. I don't have any words for it. Yeah. Well, it is sad that this fate has come upon CSK. But let's go to Shoaib. And Shoaib, आपकी टीम तो बहुत अच्छा कर रही है RCB, and somehow things are working. But I really think like the whole bowling lineup is on Hazelwood. Like if he delivers, then RCB is doing great. Otherwise, like they are not that great in terms of bowling. So, what do you think? What are the weaknesses, strengths so far? I think so. Since we are starting with आरसीबी, तो आरसीबी का मतलब obviously ऐसा तो था नहीं कि they have बुमराह, बोल्ट, दीपक चाहर and such kind of bowling lineup. ये था कि पहले से better था because the bowlers are more suitable for different conditions. Mostly उन्होंने बेंगलोर के लिए किया था ये bowling lineup, and batsmen इतना दे नहीं रहे थे बचा के कि they could deliver. Otherwise they performed really well. बॉलिंग यूनिट की वजह से बेंगलोर में कोई मैच हारे नहीं थे, एंड व्हेन दे एक्चुअली क्रॉस 200 तो वहाँ पे आया भी एक निकल के. तो आई थिंक कुछ वीक लिंक्स जरूर है, लाइक यश दयाल इज नॉट अप टू द मार्क फॉर श्योर, बट आई थिंक बाकी जो है लाइक क्रोनल के विकेट्स जो थे कल के मैच में भी और इवन एमआई गेम, उसको भूल नहीं सकते. लाइक ही इज ऑल्सो परफॉर्मिंग अबोव हिज स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग. सुयश का भी सेम है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इवन दिस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, क्योंकि पहले ही वॉज इन KKR, तो वहाँ पे सुनील नारायण एंड
चक्रवर्ती के ओवर होते थे, तो उसमें फिर श्रेयस के इसमें चांस ज़्यादा ले लेते थे बॉलर एंड बैट्समैन, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर हिज सक्सेस. बट नाउ ही इज द ओनली प्रॉपर स्पिनर फॉर देम एंड ही इज डूइंग वेल. तो मेरे हिसाब से ओवरऑल भुवनेश्वर का भी है, हैज नेवर बीन ए ग्रेट डेथ बॉलर, बट इनिशियली जो उसने कल भी विकेट दिलाया, एंड वो अगर थोड़ा ज्यादा मतलब सूर्यवंशी को भी जाने देते तो फिर और इशू होते. तो आई थिंक ओवरऑल इट्स ए मिक्स ऑफ एफर्ट्स, बट या हेजलवुड इज द लीडर, वो क्लियर था, उन्होंने उस पर ऑल इन गए. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी बैक द प्लेयर जिन पे मतलब जो परफॉर्म किए आपके लिए. तो they begged Padikkal, they begged Patidar, they begged even दयाल एंड हेजलवुड. तो इस बार निकल के आ रहा है. पहले हर बार वो जाते थे ऑक्शन में और पूरी टीम बदल देते थे. एक विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स यूज्ड टू बी देयर ओनली. तो आई थिंक वो बस एक पर्टिकुलर चीज है जो बेटर है. पर स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आरसीबी जीतेगी तो इट विल बी ऑल्सो सम बिट ऑफ लक, बिकॉज एक टीम जिसके बारे में हम बहुत नहीं बोलते क्योंकि फैन बेस ज़्यादा हमारे ग्रुप में शायद नहीं है उसका, वो है मुंबई इंडियंस. एंड द वे दे हैव कम बैक, अगर हम डीसी वाला मैच हटा दे which was a close and that was supposed to be close because they are obviously top 2 team right now. पर बाकी जो तीनों मैच उन्होंने जीते हैं they are properly one sided. मतलब we can say कि umpiring issue was there and all those things, but ऐसा नहीं था कि if we remove those umpiring decision तो मैच बिल्कुल बदल जाता. They have won it one sided. So we can only hope कि they won't make it to the playoffs. But I They think have a good 12th man. Yeah, and They have a good 12th man. yeah, that's what I was going to on the next point कि अंपायरिंग से याद आया हमें कि लाइक एमआई के अंपायर्स बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं. आई थिंक वो सीएसके में तो उनसे ऊपर है टेबल में अंपायर्स रैंकिंग में आई थिंक. सो या आई मीन वो जो आउट हुआ था सीएसके फेयर प्ले में, या सीएसके फेयर प्ले में अटक जाते हैं तो फिर वो ऐसा. या सीएसके इज टॉप बात ऑफ नहीं कर फेयर सकते. प्ले. लाइक व्हाट डज दैट इवन मीन? नो वन केयर्स. लाइक हम थोड़ा आरसीबी फैन से लर्न कर रहे हैं. मैं कहना चाहता हूँ हमारे कैबिनेट में काफी ट्रॉफीज थी, अब हम दिल जीत रहे हैं. दिल भी नहीं जीत रहे तुम लोग. मतलब आरसीबी यूज्ड टू गिव ग्रेट एंटरटेनमेंट. या तो उनका 265 यहाँ पे नींद आ रही है. हाँ, या तो मतलब नींद आ जाती है. 49 वाला ड्रामा भी नहीं और 275 तो कभी बनाएंगे भी नहीं. I agree, but with the new boys coming in, I think with Baby AB coming in and now with other people also, Sheikh Rashid and others, हो रहा है. People were like, I think no CSK fan has ever appreciated AB, and now they are saying Baby AB. Yes, yes. I'm talking about Baby AB. I appreciated AB de Villiers. Why is called Baby AB? So yeah, so call him. Baby थाला बोलते हैं. बेबी थाला तो है नहीं अभी टीम में. एनीवेज सो लाइक I don't know whether you. Baby Thala already exists. बेबी No, थाला I can exists. tell you Who is there's called? this meme. But Chinna Thala is different. Baby Thala is different, na? So There's no Baby Thala, but they CSK has like compiled a team of all the baby players. Like MI had Malinga, so now we have Baby Malinga, Pathirana. GT has Rashid Khan. We have Baby Rashid Khan, Noor Ahmed. They had a complete AB de Villiers RCB. We had a Baby AB now. So we are taking players like this only, the baby players. Main players ले नहीं पा रही है CSK. Still you went with him. yeah, but what about Grandpa Dhoni? Like when is he retiring? Like come on, he's a hero. We love him, but like today's inning we saw like it's not happening for him. He should actually give some chance to youngsters. If he wants to experiment, he can even do that. Like give a chance to a youngster, make someone else captain for a match, and then experiment. Give once maybe a chance. So like that can happen this season. Are you guys seeing that, or like am I the one who thinks Dhoni should retire? Is absurd. So see, I could say this that yeah, Dhoni is not playing in the best shape, and I've been saying it from last 1 or 2 years as well. When you're coming to bat at 9 down, like we say for KKR, Ankush Raghuvanshi and Rinku Singh are coming 8 or 9 down, we rant about it. Same thing for CSK. If Dhoni is coming 9 down, I rant about it. But if he's coming at 5-6 number and still trying to hit it, when the other team is also failing, it's the nearly same power.
And the only reason why I see Vansh Bedi should play is because KOR has Vansh Bedi in the IPL option. No, That's the only reason no. KOR Right now wants they just have Vansh one Bedi to play. keeper. That's why. Otherwise, Conway is not here because maybe his father passed away, so he's not in the squad. So they don't have any other keeper. So that's the thing. No, I think they have Vansh Bedi. Yeah, Vansh Bedi is the keeper. But only still, one. chalo, let's just forget about Dhoni not performing. You don't have any other batting only. So, like, even if Vansh Bedi comes in, he will give you 20, 30 odd runs extra. Your entire batting has to make more runs. It's like you can still carry Dhoni as a legacy act Hmm. for at least few matches. Now nothing matters because it's you are eliminated. But what about your other batters? This is like a 3-year cycle. I You do think not have other batters. they will get rid of all the three batters that they have: Tripathi, Huda, and Vijay Shankar. I think, and they'll Vijay get Shankar. someone else. But who will you get now? Because will other franchises release good players with IPL experience? Hmm. You'll have to totally back on youth Hmm, yeah. who have not played the IPL, who are coming from your little T20 leagues, which they are doing good also. But then you have nobody who has IPL experience who is good enough to bat. There's You Prithvi did Shaw not. available. Prithvi Shaw is also a keeper, by the way. So maybe. I Okay, agree with what Arnav said, Prithvi Shaw but isn't I even can. making effort to bat. You are expecting him to keep. See, actually, CSK is not a team who is known to like groom such youngsters. Matlab, they can groom people like Dubey and all who had some experience in internationally, want some revival. They can correct their techniques and all. Like for example, like whatever performance Devald Brevis or Ayush Mhatre is giving, Hmm. it's all based on their skills and understanding. It's not like CSK found them, groomed them, or something like that. So it will only time will tell because they groomed Rachin Ravi, they groomed Shivam Dubey, and they are not like this year. These are the two guys who should have been like 500 run a season kind of players. Yeah. Uh, we can say a lot about Dhruv Jurel. He is not finishing, but he is actually giving those 40, 50, 30 runs. Hmm. Same like Parag, I think, is the reason he just had one big good inning and he is struggling. So their four is not consistent. Hmm. And 1, 2, 3, maybe initially Jaiswal was not consistent. And mostly they are not losing like, oh, till last ball you have a chance. So they had to fix one or two things like how we can close the games. But for CSK, they are never in the game. Like आज के मैच में they had a lot of chances to actually control SRH, and they are a team which can collapse easily. That's their style. But he has to give them the chance कि 150 chase हो गया. Otherwise situation में था CSK control करने की. Even RR had Akash Madwal, but they're not giving him chances. They are giving Tushar Deshpande a lot of chances, even though he's going for a lot of runs. Also, Kumar Kartikeya bowled well, and he's just not getting the chance in the 11. So maybe bowling woes are also there because apart from Jofra Archer, no one else is contributing I much. think as a team, if you choose No, there Sandeep is Sharma or Asanga. There is Archer for Asanga and Sandeep Sharma. Yeah. Sandeep Sharma, but like again, he has gone for a lot of runs. Either that or he just takes wickets, but doesn't matter no, anymore. But question is like I want you to have actually. Jofra Archer. Yeah. Sorry, I just wanted to Yeah, yeah. answer one of the things that Arnav was talking about. So, as a CSK fan myself, I can tell you these things. So, CSK has never been a grooming side. That is true. We know this all because all the likes of players that you see that have even performed for CSK, the big names, they have been like Faf du Plessis, they have been Watson, they have been Matthew Hayden before that, Murli Vijay, Rahane, Raidu, all these kind of players that have performed before. So right now, what I also see with a lot of teams, the people who are performing are the youngsters, be it Sai Sudarshan for GT, be it Priyan Charya for Punjab, be it anyone else like Ankush Raghuvanshi for KKR. There are new names, Rajat Patikar for RCB, the ones who are performing. And the same thing had to happen with Rituraj Gaikwad also. Hmm. I think it still would have been a different thing if we still had Rituraj Gaikwad. I still don't understand why they even started experimenting
It's something that was not broken. I don't understand the reason why they even started opening with Tripathi and Devin Conway. I Yeah. think CSK missed a trick there. Ruturaj Gaikwad and Devin Conway are not doing so horrible, but they had to be shifted. So Ruturaj Gaikwad, Shivam Dubey, Mathish Patrana, I think they have been with CSK for a long time and they were due to deliver. And I'm sad with the part of how Dubey and Patrana is delivering. Every time I see Patrana bowling, he's bowling constant wides. Yeah, There's a no lot of pressure with whites. a bowler of that caliber. Like we are talking about Hazelwood with RCB. You have the one pacer that is stuck with RCB with CSK for a long time. That is Pathirana. Still, I don't think any team is fearful of Patrana. He's coming for 4 death overs. Everyone knows he starts at 13th over. But there's nothing left for him. He's not doing something Yeah, special. there is no So yeah, bowler who can CSK. just have some control in the middle overs because you are bowling Pathirana at 12th over. Like you had chances when you can just introduce him before Sam Curran, but they didn't do that. So it's too late for Pathirana to even make a difference at that time. So they want some person to have a control, like Bumrah does that for MI in middle overs. Hazelwood is doing now for RCB. So they don't have that bowler. I think Nathan Ellis can be one such bowler who is good at depth and the middle overs both. So maybe that option can also venture. But yes, let's just stop talking about CSK. I don't think CSK is gonna qualify, and there is a lot of talk already on CSK. So I want to concentrate more on the teams that are doing great now right now. MI, we all thought that MI is gonna eliminate as well, but then they came back from the same situation CSK were, and they are showing intent. CSK is not showing intent. Dhoni on his interviews, on the toss interview, on the postman interview, he has given up. He has given up from the previous few games as well. So MI didn't give up. They won 4 games in a row, and now Mm. even though we say that yeah umpires this and that, but Surya Kumar Yadav is batting really great. Rohit Sharma is also batting. Even if Rohit Sharma doesn't bat, I think they will win because they have that certain players in the lineup who are great form. So yeah, what do you guys think about first of all the out of Ishan Kishan last match? Do you think Yeah. that is So fair? I think during the selection also of our top four and winner, a lot of people placed MI, and Yeah, I yeah. think including me, many of us didn't even rule them out. तो ये तो मतलब सबको पता था कि MI is the strongest side. मतलब you have such a quality retentions at such a cheap price, and then you got Deepak Chahar, Trent Bolt, even Naman Dhir, and he has played really well. And Hmm. then whatever leftover they got, they were also quite good quality. So means like it's rare to see. Otherwise, even if we see DC and all, they are doing really well. But आशुतोष विपराज ये नए नए नाम है. तो आरसीबी में भी कुछ ऐसे नए नाम हैं या नॉट दैट काइंड ऑफ प्रूवन प्लेयर्स है. बट एमआई में वैसा कुछ दिखता नहीं है. तो यही है कि अगर एमआई क्वालिफाई अगर कर लेती है तो दे आर नॉट गोना गो आउट. हाँ, वो जो ईशान किशन वाला आउट है, आई थिंक वी डोंट नो द रियलिटी. मतलब whether umpire supports them or not, means it's not just about MI game. I am seeing a lot of situation जहाँ पे मतलब जैसे आरआर के तीनों अगर हम देखे मैचेस, तो लास्ट वाला तो खैर डिफरेंट था, बट जो पहले दोनों मैच वो हारे हैं, Hmm. दे डिडंट ट्राई स्कूप एंड ऑल जो भी पीछे से लाइक मारते हैं. So those kind of shots were not there, and it looks like effortless. And then you bring Sandeep Sharma or Jofra Archer and all. तो समझ में नहीं आ रहा है. मतलब काफी टीम्स के अंदर ऐसे डिसीजन हो रहे हैं जो लगता है कि यार ये तो मतलब कॉमन सेंस बोलेगा कि आप ये ऐसे डिसीजन मत लो. Even today's game we see Sam Curran, so we don't know like what is happening. We can just assume that it's all based on they want to do something out of the box, or when you don't perform well, you made up such kind of wrong decisions. And that I think may have happened in SRH case कि ईशान किशन वैसे ही अच्छा नहीं खेल रहा था, प्रेशर वगैरह ज्यादा होगा, तो मे बी दैट कुड बी द रीजन. बट आई थिंक इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, इतना इंटरनेशनल आप खेल रहे हो कि आपके बैट से बॉल अड़ी है या नहीं है. एंड देन अंपायर इज ऑल्सो लाइक
ऐसा करते मैंने कहीं और नहीं देखा, तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। तो मीन्स आई एम नॉट श्योर, आई एम नीदर सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉर आई कैन कंफर्म कि ऐसा कुछ सही में हुआ है। मुझे नहीं लगा, जब हमने सीजन का स्टार्टर भी किया था तब भी हम सब में से जितनों ने बोला था एमआई इज अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑन द टेबल, बट आई डोंट थिंक कि कैसे आप किसी टीम जिसमें रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या इन द मिडिल, देन बोल्ट, चहर एंड बुमराह इन द पेस बैटरी, मतलब बहुत कम लूप होल्स हैं उनके पास वो थे। बट इट्स स्टिल अ सरप्राइज टू मी कि कैसे एमआई उतने गेम्स भी हार रहा था। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे एमआई से एक सीजन फिनाले का पहले से ही थ्रेट था, जो अब मुझे लग रहा है कि सच हो रहा है। So I think it's just clicking on the right time. It's something like Rohit also. You see, पहले 5-6 मैचेस नहीं चले, फिर जब एक बार चले तो he has made both the games one-sided. So same thing is clicking for them. And सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, एक बार तिलक वर्मा के रिटायर्ड बर्ड भी किए गए इस चीज में, जिसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि तिलक वर्मा को हटा के मिचेल सैटनर को लिया। But still, I think MI is doing a great job with this kind of thing. Yeah. So like okay, we talked about Mumbai as well. Now I want to talk about LSG. Like LSG somehow has produced like last over thrillers as well as bottling games as well. So somehow they are still on 10 points and at sixth rank. Like you have 10 points and you're on sixth, still sixth. So they're like, I don't know. It's a mixed feeling. But Rishabh Pant is not firing at all. What is going on? Rishabh Pant is like doing a finisher role or something, going for just two balls at the end of the innings. So, what is going on with LSG, and what are your thoughts, guys? Do you think Rishabh can come back from this? सी मतलब एलएसजी का आई थिंक दिस इज मतलब उनका और केकेआर का पोजीशन हम मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब दे वॉन सम मैचेस बाय लक। हाँ, पहला मैच जो डीसी जीता उनके अगेंस्ट, इट वाज देयर गेम, बट दे वर आल्सो नॉट लाइक कंप्लीटली इन द गेम। मतलब एंड इफ यू लुक एट देयर टीम, अगर हम मिशेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पुरन को हटा लेते बैटिंग में, थोड़ी फायर पावर मिल जाती है समझ से एंड में, बट अदरवाइज इट्स अ 4 बैट्समैन काइंड ऑफ थिंग एंड 2-3 बॉलर्स। तो ऐसा नहीं है पूरी प्रॉपर बैटिंग लाइनअप है। बट ये है कि जब भी वो परफॉर्म करते हैं, उनमें से काफी लोग अपने दम पे मैच निकाल देते हैं। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद देम आई थिंक मोस्टली। बट आई थिंक दे वोंट बी एबल टू क्वालिफाई। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो बहुत बड़ा मिरेकल होगा, बिकॉज पंजाब, मुंबई एंड आरसीबी में से 2 टीम को बाहर जाना होगा। एंड जैसा परफॉर्मेंस है वैसे लग नहीं रहा है कि ये टीम में से 2 टीम बाहर हो जाए। एक हो सकती है, वो ऑब्वियसली होगी। एंड डीसीजीटी आर वे अहेड। मतलब डीसीजीटी तो आउट ही नहीं होती है, लाइक Yeah, because I GT has 12 points, DC has 12 points, RCB has 12 points, and now MI, PBKS, and LSG are around 10 points. So maybe one of these three teams might qualify, MI, PBKS, or LSG. I think Punjab has better chances. But I have a question. Yeah. That very similar to LSG, जो मुझे मैचेस देख के लगता है LSG का, I agree with what Shoaib said, but मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि GT सिमिलर फॉर्मूला के साथ चल रही है। GT के भी अगर आप टॉप 2-3 हटा दो, हाउ दे आर प्लेइंग विद साई सुदर्शन, शुभमन गिल एंड बटलर, दे आर डूइंग इट। सो मुझे LSG का भी सिमिलर फॉर्मूला लग रहा है कि अगर LSG के ऊपर के 2-3 चलते हैं, द मैचेस जिसमें आप देखो मिचेल मार्श चला है, जिसमें निकोलस पूरन चल गया अपने उस पे, देन दे हैव वॉन द मैचेस। आई थिंक इट्स बीन वेरी सिमिलर टू देम कि जैसा जीटी परफॉर्म कर रही है वैसा ही वो भी चाह रहे हैं। बट रिसेंटली निकोलस पूरन, आई थिंक बिकॉज वो एक कितना सेंट्रल फिगर था व्हेन यू कमिंग 1 डाउन 2 डाउन, कि जब से वो फायर नहीं कर रहा है तब से आई डोंट थिंक एलएसजी इज गेटिंग इट। एंड मुझे सिमिलर प्रॉब्लम पंत से है। मतलब विद सच अ प्राइस टैग इतना नीचे आना, 6, 7, 8 पे आना, बिलो अब्दुल समद एंड एवरीवन एल्स, not making sense. You have one player, Nicholas Puran, 1 down. I think he's a 2 down player, and in any situation उसको आना चाहिए था। ये last 2 balls के लिए आना is just like MS Dhoni style, which Yeah. everyone hates. Yeah, even like I think yeah, please go ahead. in today's game also we saw that Nitish Kumar Reddy was given a bit leeway, and he came a bit down the order and he played well. So समटाइम्स ऐसा भी होता है, उनको कभी किसी को लगता है कि ज़्यादा कोलैप्स हो गया तो नीचे कोई चाहिए ऐसा। बट इन केस ऑफ एलएसजी आई डोंट थिंक, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि मोमेंटम चल रहा है तो चलने दो, ऋषभ पंत को भी आने दो, मारने दो। मींस लाइक सी एक तो जो जीटी और एलएसजी का कंपैरिजन था, आई थिंक ऑन सम पॉइंट्स आई कंप्लीटली एग्री, बट देयर इज टू थिंग्स आर देयर।
एक तो जो जीटी का है ना वो काफी लो रिस्क बैटिंग है, सो दे स्कोर रन्स बट दे आर नॉट लाइक पूरन और मार्श की हम आके मारेंगे एंड वी कैन कोलैप्स, तो वो एसआरएच वाला फीलिंग आ जाता है। प्लस बॉलिंग देखो उनकी, लाइक इन जीटीज बॉलिंग यू विल रेयरली सी एनी काइंड ऑफ लूप होल, मतलब साई किशोर है, राशिद है, सिराज है, प्रसिद्ध है, देन दे हो, मतलब कई बार तो इट लुक्स लाइक दे प्ले विद 6 प्रॉपर बॉलर्स। Yeah. तो मतलब वो जो चीज है ना वी नेवर सीन अ लॉट ऑफ अदर टीम्स, मतलब इंक्लूडिंग द एमआई की भी जो बॉलिंग है वो ऑन फ्रॉम कंपैरिजन, मतलब मेरे हिसाब से जीटी की थोड़ी ज्यादा इंटरनेशनल प्रूवन है कंपेयर टू लाइक दीपक चाहर एंड बोल्ट। बुमराह जरूर है बट सेंटनर एंड ऑल टी20 में ऐसे इतने नहीं है जैसे राशिद वगैरह है। तो बट सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन। एंड पंत का यार वो है कि वो पंत वैसे भी कुछ ऐसा कर नहीं रहा था, एंड समद हैज प्रूव्ड, बदोनी हैज प्रूव्ड, तो आई थिंक इट वाज मोर लाइक कि जो चल रहा है इट वाजंट लाइक कि एम एस धोनी के केस में अश्विन को आप भेज रहे हो या हुडा शंकर ये सब अच्छा नहीं कर रहे फिर भी आप उन्हें भेज रहे हो, बट यहाँ पे ये हो रहा है कि पंत बॉल बिगाड़ रहा है, 8-10 बॉल खेल के 5-6 रन बना के आउट हो रहा है, एंड देन समद 15 गेंद में 30 बना रहा है, या बदोनी आपका कॉलेप्स बचा रहा है, तो उनको लगा जो चल रहा है तो मतलब मुझे लगता है ऋषभ पंत हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, बट वो ऐसा कॉल नहीं था कि ऋषभ इज ग्रेट एंड स्टिल कमिंग लेटर, ही वाजंट ग्रेट, दैट्स व्हाई ही केम लेटर। Yeah, because also now on the other points like PBKS and DC are also doing well. DC at 12 points, and now we are thinking that they don't even need Natarajan, even though I don't think he's fully fit. But if Natarajan comes towards the end of the like tournament or even in the playoffs, then I think DC would be even better team. With Dushmanta Chamira might go off and he might come in. Also, Gerald Coates is gonna play for GT next game. He's fit as well. So yeah, on the back end of the tournament, we have a lot of variables that come into the teams, and then they just surprise everyone else. So ऐसा लगता है कि अभी भी कोई ऐसा आना है, जैसे कि आज तो डिवल रूल्स आके ऐसे मार दिया, तो अभी और भी कोई ऐसे प्लेयर्स आपको लगता है टूर्नामेंट? मुझे लगता है डीसी ने मतलब क्या है ना कि एक तो उनने अपने हैरी ब्रूक का भी रिप्लेसमेंट नहीं लिया, एंड देन वो वहां मुझे लगता है मतलब 2-3 ओवरसीज से आप खेल रहे, यू हैव अ लॉट मोर क्वालिटी आउटसाइड, मतलब डेवल्ड ब्रेविस, जस्ट अज्यूम डेवल्ड ब्रेविस ओपनिंग फॉर डीसी अलोंग विद करुण नायर, वो काफी डिफरेंट हो जाता, मतलब डीसी और ज्यादा फॉर्मिडेबल लग सकती थी, या इवन ही कमिंग एट 4 केएल ओपनिंग, तो मुझे लगता है डीसी थोड़े वहां पे कॉल नहीं लिया, बट मे बी स्टेटस को जो अच्छा चल रहा है उसको why break something which is why change something which is not broken वाला केस है। बट आई थिंक ओवरऑल तो अभी ऐसा कोई प्लेयर आना बाकी नहीं, बुमराह इज ऑल्सो कम, ये हो सकता है कुछ यंगस्टर्स बाकी टीम जो अच्छा नहीं कर रही है, लाइक केकेआर में प्ले लवनीत एज ए कीपर, एंड वो जो उनका प्रॉब्लम होता है कि या तो मोइन खिलाए या कोई ओवरसीज बॉलर खिलाए, तो दे कैन प्ले बोथ एंड हैव लवनीत सिसोदिया एज ए विकेट कीपर, वो हो सकता है। जीटी के अंदर तो आई थिंक जोस इज नाउ डूइंग बेटर विकेट कीपर, पहले इश्यूज ज्यादा हो रहे थे, तो और जीटी में बैटिंग आती भी नहीं, तो वो कोलैप्स होगा तब हमें दिखाई देगा कि शाहरुख एंड तेवतिया कैन डू इट और नॉट, डिलीवर ऑन टाइम और नॉट, and if they don't then we have to see. I think see mostly जो टॉप की टीम्स है ना उनमें तो दिख ही रहा है। एक चीज ये है कि चेंजेस के चांसेस भी नहीं, लाइक इन पंजाब किंग्स दे आर स्ट्रगलिंग टू फिट इन बोथ स्टोइनिस, मैक्सवेल और इंग्लिश, एंड तीनों में से मतलब कोई ऐसा अपनी पोजीशन कंफर्म नहीं कर पाया। हाँ, अगर इनमें से कोई एक बहुत अच्छी बड़ी इनिंग खेलता है एंड वो कंटिन्यूस रन होता है तो वहाँ पे मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होगा पंजाब का। बाकी सीएसके और आरआर तो मेरे हिसाब से बाहर ही है, एसआरएच भी 1-2 मैच में बाहर हो जाएगी। केकेआर का भी हैव टू सी, अगर केकेआर का वो कॉम्बिनेशन से ही आ जाता है तो उन्होंने मतलब बहुत नैरो मैच हारे, तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि दे कुड हैव बीन लाइक एट प्लेस ऑफ एलएसजी, और उनकी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग करे तो वो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते अगर वो अभी भी रेस में होते। इवन केकेआर कैन गेट रोमन पॉवेल इन, and because he's also hard hitter and they want someone hard like in the middle order, because रसल से नहीं हो रहा है अभी, ऐसा लग रहा है मेरे को। जो केवर का सवाल है ना, जो केवर का सवाल है एक्चुअली
फॉर द न्यू पीपल कमिंग इन, जो दिक्कत है जो मुझे टेबल को देख के लगती है वो ये है कि जो भी बॉटम की टीम्स है ना, आई थिंक उन्होंने जितने कार्ड्स खेलने थे लगभग वो खेल दिए हैं। जैसे सीएसके के साथ अभी डेवॉल्ट ब्रेविस की बात करी, आरआर के साथ यू कैन टॉक अबाउट दिस अरे सूर्यवंशी, सूर्यवंशी। ओके। सेम थिंग फॉर एसआरएच आल्सो, दे ट्राइड सम थिंग्स, बट ये जो टॉप टियर टीम्स हैं, आई थिंक जैसे आप जीटी में बोल रहे हो कि विद जेराल कोच से और डीसी के साथ में भी यू आर टॉकिंग अबाउट मुकेश, सॉरी टॉकिंग अबाउट नटराजन देयर। सो मुझे लगता है और भी उनके ऑप्शंस थे, जैसे दे प्लेड समीर रिजवी थोड़े टाइम के लिए, बट दे स्टिल हैड अदर प्लेयर्स आल्सो जो वो ट्राई कर सकते थे। देयर इज दिस वन हिडन टैलेंट कॉल्ड माधव तिवारी, दैट्स आल्सो विद डीसी, ओके, सिमिलर नोन। बट आई थिंक इनको इससे मौका नहीं मिलने वाला बिकॉज द टीम इज ऑलरेडी डूइंग गुड। इनके अंदर आने का मतलब होगा कोई ना कोई एक प्लेयर बाहर जा रहा होगा इन सारी कंडीशंस में, तो वो मुझे लगता नहीं हो रहा होगा। और सिमिलर प्रोफाइल में मुझे लगता है जैसे आरसीबी ने ये चीज करी है अभी, दे ड्रॉप लियम लिविंगस्टन, दे गॉट इन रोमारियो शेफर्ड, तो अब उनके पास ऐसा नहीं कोई कोई नया आने वाला है उसके अंदर, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। द मैक्स दे कुड गो वाज नुवान तुषारा या फिर लुंगी एनगीडी इन प्लेस ऑफ हेजलवुड, बट हेजलवुड इज आल्सो डूइंग गुड। सो आई डोंट थिंक कि आपको ऐसे सरप्राइज पैकेजेस बचे हैं। जो कुछ टीम्स हैं जो दे आर डूइंग गुड, अब इस जब 5-6 मैचेस बचे होंगे आखिरी लीग के, इवन अगर उनके बेस्ट प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे एक दो मैच में, आई डोंट थिंक दे आर गोना ड्रॉप एनीवन। द ओनली थिंग दैट कुड हैपन, जैसे अभी जेएफके ड्रॉप किया गया था बहुत टाइम के लिए डीसी से, इफ डीसी स्टिल परफॉर्मिंग गुड देन दे हैव समथिंग लाइक दिस कि हाँ हम जेएफके को ड्रॉप करके कोई और नया खिलाना चाहते हैं उसकी जगह पे, वरना आई डोंट थिंक देयर इज एनी चेंजेस कमिंग टू आईपीएल Well, नाउ। I think that's a good point. Like maybe in RCB, are now doing hand raising. This is not class, bro. You can talk, but I'm just quickly saying like I think maybe RCB can go with if they are having a fourth overseas problem, they can go with Bethel, and he's in the great form. Like I know Padikkal is performing, but he can also sub in that 2 down or 3 down position and also give something with the spin. So Romario Shepherd was not working in the last game as well. So maybe that is also a case, but that's too long shot. But yeah, Arnav, what you're saying? So basically, I wanted to ask an update on if Mayank Yadav is coming or not. Oh yeah, he's Is fit. it He's fit as well. So there are factors that are coming in the last if half of Mayank IPL. Yadav is coming and if Mayank Yadav is fit and if Mayank Yadav is fine? Hmm. I know it's for a fast bowler after the injury is really hard, but it has been done before that if Mayank Yadav is fine, then LSG look better in the bowling. Yes. Then So the news was like they wanted to sub him, but most of the LSG was facing a batting collapse, so they had to bring in Ayush Badoni all the time. So they were doing like keeping Ayush Badoni on the reserves for keeping Mayank Yadav in the second innings, but he was not coming off. So he confirmed Ayush Badoni, but somehow Ayush has also been good for them. So I think maybe their bowling somehow. Shardul was bowling well, but now somehow he's again back to his old Shardul form. So and we saw Kamindo Mendes coming in today's game, yeah, and he has played few games in the past, but today is the game where he made actual impact with bowling, batting, and fielding. So I think for me he was the man of the match. I think Harshal was given right. Uh, yeah. so Has this guy called Swastik Chikara? I don't think अभी काम में आएगा या नहीं वो मेरे को नहीं पता oh, because Devdutt has cemented himself. But he's like a firecracker. He's हाँ. like if I like think they वो पंजाब वाले मैच में they could have tried him. I don't know why they did go with this Manoj Bhandge. वहाँ पे I think चिकारा को 3 करना था उनको. I think But, उनको ऑलराउंडर चाहिए था इसलिए उन्होंने ऐसा किया. बट तो फिर तुम सभी ने ना करो ना तो तुम ऑलराउंड मेरे को वो स्ट्रेटेजी ही नहीं समझ में आई तुम मतलब तुम नॉर्मल ओवर के मैच में यू आर यूजिंग प्रॉपर बैट्समैन पर्टिकल एंड 14 ओवर में यू नीड ऑलराउंडर. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज़ 3 ओवर डालने हैं और करेक्ट. 3 बॉलर को 3 ओवर इसको 2 ओवर मेन 4 बॉलर जो डालने वाले वो आपके साथ थे. हाँ, आई थिंक वहाँ पे आरसीबी ने पहले 3 मैच में यही गलती की थी चिन्ना स्वामी में कि दे अज्यूम्ड कि इट्स ए फ्लैट ट्रैक एंड वी हैव टू स्टार्ट. वो हुआ नहीं एंड दैट्स व्हाई दे लॉस्ट दीस मेनी गेम्स.
हाँ आई थिंक मयंक यादव का सी आई डोंट नो मतलब बहुत ज्यादा पेसर स्पीड की इस मतलब इतने स्पीड वाले पेसर्स का इम्पैक्ट होता है लाइक वी कैन सी यस्टरडेज जोफ्रा का जो स्पेल था बट मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मयंक यादव का जो फर्स्ट सीजन था वहाँ पे एकदम से 150 आ रही थी यू वांट सी सच काइंड ऑफ थिंग्स नाउ पीपल विल बी रेडी एंड ऑल प्लस ही वाज आल्सो इंजर्ड तो लेट्स सी पर मुझे मतलब एलएसजी में ऐसा कुछ स्पार्क दिखता नहीं कहीं ना कहीं मतलब इवन इफ दे मेक इट एलिमिनेटर में चले जाएंगे मतलब इट्स वेरी रेयर आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ मतलब अभी तक एक कॉम्बिनेशन निकल के नहीं आया लेकिन एमआई यू कैन से कि इवन इफ दे वोंट लूज एनी मैच फ्रॉम हियर देयर इज अ गुड चांस कि मतलब एक भी मैच नहीं हारे इतने स्ट्रांग है वो सेम कैन गो फॉर जीटी डीसी इवन आरसीबी यू वोंट फाइंड मतलब वो हारेंगे जीतेंगे चलेगा बट यू वोंट फाइंड कि उनको बहुत सारे प्लेयर्स में अभी भी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है अपनी टीम का यू कैन हैव बेथल एट लिविंगस्टन्स प्लेस एंड ब्रिंग डाउन डेविड यू कैन हैव डेविड अप bring down Shepard. You can play all those permutation and combination, but overall the team is solid. मतलब दो प्लेयर का है जहाँ पे आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है ओवरसीज के. पंजाब में भी देर आर 3 प्लेयर्स जिनको आपको शफल करना है. एंड इफ यू रिमूव बाटलेट एंड ब्रिंग इन सम वाइशक तो तीनों को भी खिला सकते हो. सो इट्स अप टू पंजाब. बट ये आई थिंक ओवरऑल एलएसजी का तो मुझे नहीं लग रहा है. आई थिंक जो टॉप 5 अभी है उनमें फाइट होगी एंड बॉटम 10 में आई थिंक आरआर एंड सीएसके आर trying really hard to come last. Let's see who wins. All right, so let's go to Bhavyadeep, who looks more like Rohit Sharma today rather than Riyan Prayag. हाँ भाई जो अच्छा करता है उसको कॉपी करता हूँ मैं. Anyway, so which was your favorite match this week? What do you think about IPL so far? काफ़ी लंबा गैप हो गया है मतलब आई थिंक देयर वाज अ 2-3 दिन का वो फेज आया था जब बैक टू बैक क्लोज मैचेस हो रहे थे राइट. इवन आई थिंक कल का मैच आरसीबी वाला वाज आल्सो इंटरेस्टिंग मतलब मैं पूरा नहीं देख रहा था बट देयर वाज अ सिचुएशन कि 2 ओवर बाकी थे एंड आई एम लाइक चलो देखते हैं यार मतलब इट वाज ऑन ये राजस्थान के फेवर में था एट दैट टाइम बट आई वाज लाइक एनीथिंग कैन हैपन एंड वैसा ही हुआ. आई थिंक द ओवर दैट हेजलवुड बोल्ड बहुत मतलब इट वॉज टॉप नॉच. ऐसा अगर ऐसा इंटरनेशनल T20 में फेंका होता तो अगर आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसा फेंका होता तो आईसीसी वाला हैंडल उसको कट करके हर साल दिखाता रहता कि अरे बॉलिंग पैकेज. इट वॉज दैट गुड क्योंकि जिस क्वालिटी और जिस मतलब रेपुटेशन के साथ वो यॉर्कर एग्जीक्यूट कर रहा था इट वॉज ग्रेट एंड मतलब यूजुअली वी डोंट एसोशिएट ब्लॉक होल बॉलिंग या डेथ बॉलिंग विद हेजलवुड दैट मच राइट क्योंकि हमारे दिमाग में वही टेस्ट मैच वाला इंप्रेशन है कि हाँ भाई आएगा और कंसिस्टेंटली डालता रहेगा. सो आई थिंक दैट वाज ग्रेट. और आई थिंक आरआर आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी अदर आईपीएल टीम बॉटलिंग सच इजी मैचेस बैक टू बैक इन आईपीएल. मतलब आई थिंक लास्ट टाइम आई रिमेंबर इट वाज पंजाब टीम पंजाब किंग्स when KL Rahul was captain in that season कि KL ऊपर आके बेचारा पूरा मैच खींच के ले जाता था एंड वी लाइक हाँ अब तो जीतेंगे. लास्ट में दे वुड बॉटल इट अप. देयर वाज वन मैच अगेंस्ट आरआर ओनली तब आई थिंक कार्तिक त्यागी राइट बॉलर था उनको लास्ट में कुछ बहुत कम रन बनाने थे. आई थिंक कितना 4 बॉल में 2 रन या 3 रन हाँ ऐसे कुछ था. हाँ एंड वो बंदे एक ओवर में थी. हाँ एक ओवर में 3 एंड भाई वो 3-4 लगातार डॉट बॉल आई थिंक वही वाइड वाली लाइन डाल रहा था एंड वो लोग पता नहीं मिस कर रहे थे यार छोड़ रहे थे. तो इट वाज क्रेजी. आरआर आई थिंक पता नहीं यार मतलब इट्स अ गुड टीम बट फॉर सम रीजन पता नहीं किस हिसाब से दे आर मिसिंग आउट. आई थिंक जीटी इज वन ऑफ द साइड मतलब जीटी काफी लोगों को क्लैरिटी दे रही है अपने बारे में कि दे वर नॉट द रीजन व्हाई जीटी वाज सक्सीडेड. मतलब इफ शमी वुड थिंक इफ हार्दिक वुड थिंक कि हमारी वजह से वो जीतते थे यू कैन सी सिराज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट सिराज. मतलब ऐसा सिराज तो सिराज ने भी कभी नहीं देखा होगा. एंड प्रसिद्ध कृष्णा इज गुड लाइक विकेट टेकर होता था बट रन भी नहीं दे रहा है लाइक मैंने तो प्रसिद्ध कृष्णा को कभी भी स्लोअर बॉल डालते हुए नहीं देखा. अब चेंज ऑफ पेस डालते नहीं देखा और अब वो डाल रहा है जीटी में आके और लाइक सबसे अच्छा डाल वही. रहा है. एंड आई थिंक दे हैव ग्रोन रियली वेल. और सी हम मतलब काफी क्वेश्चन कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड ईयर में. आई थिंक तेवतिया ने काफी मैचेस जीता है
इस तरह के लाइक मिलर के साथ, राशिद के साथ, एंड वो स्टार्क वाले ओवर से भी वी कैन क्लियरली सी कि मतलब ही इज स्टिल हैविंग दैट स्पार्क, और उसके लिए उसको रखा है तेवतिया को, मतलब कि लास्ट के 1-2 ओवर के लिए ही रखा है। एंड वी कैन सी कितना इंपॉर्टेंस होता है उस टाइप की इनिंग का। वी कैन सी जुरेल एंड बाकी काफी प्लेयर वो चीज नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक जीटी के पास उन्होंने एक चीज बहुत सही की कि उनको पता था कि हमारी मतलब टीम बहुत सॉलिड थी, तो दे कोर उन्होंने वापस रिटेन किया, और जहाँ पे वो अपग्रेड कर सकते थे लाइक एज फैक्टर की वजह से आई थिंक दे वेंट फ्रॉम सिराज टू शमी टू सिराज, और प्रसिद्ध में आई थिंक दे यूज्ड टू हैव समथिंग लाइक दयाल एंड ऐसे ही कोई होता था, मोहित शर्मा एंड ऑल। तो आई थिंक वहां भी वो यंगस्टर की तरफ गए ओवरऑल। बाकी आई थिंक बस एक नूर का मुझे लगता है कि उनको अगर वो रिटेन करते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट ठीक है मतलब साई किशोर इज डूइंग फाइन, बट साई किशोर, राशिद एंड नूर मतलब वो अलग ही क्या होता पता नहीं उस बॉलिंग अटैक से। तो बट आई थिंक ओवरऑल मतलब अगर मुंबई हारती फाइनल तो इट कैन ओनली हैपन इफ जीटी इज प्लेइंग अगेंस्ट देम। मुझे दिल्ली से लग रहा है कि काफी सारे उसमें ऐसे प्लेयर है जो है अच्छे, बट दे ऑल हैव लाइक मतलब वो कभी फाइनल एग्जाम दिए नहीं वाले प्लेयर है। या तो इवन देखो ना कि जैसे कि मोहित शर्मा लास्ट सीजन बहुत सही बॉलिंग रहा, बट नाउ ही गोज टू डीसी एंड नाउ ही इज लाइक नॉर्मल बॉलर एंड गोइंग फॉर लॉट ऑफ रन्स। सो उसको भी शायद सब आउट कर लिया बाद में, लास्ट गेम नहीं खेला था। सो आई थिंक इन अ वे आशीष नेहरा इज गाइडिंग bowlers so well that even any bowler can just turn out to be a great bowler. But yeah, I mean, आई थिंक एटलीस्ट इंडियन बॉलर्स के लिए तो बहुत सही है आशीष नेहरा। आई थिंक ओवरसीज को बॉलर कोई चले ही नहीं है इतने। राशिद खान भी इस टाइम नहीं चल रहा है अच्छे से। Yeah, I think Noor was the only international bowler that was doing great. आई थिंक वही होता है कि एक तो उनकी जो बॉलिंग है वो काफी स्ट्रांग है, और इतनी स्ट्रांग बॉलिंग मतलब कोच वहाँ पे नेट्स में भी उतनी टफ बॉलिंग करा रहा होगा, तो बैट्समैन का भी मतलब स्किल्स बेटर हो रहा है। एंड आई थिंक a lot of people would be there at the back end. We don't know like what kind of effort Vikram Solanki, Ashish Kapoor, all these guys play. लेकिन जैसे अरशद खान को भी काफी अच्छा किया है उन्होंने, इतना अच्छा वो पहले नहीं खेलता था। साई किशोर को काफी अच्छा किया। आई डोंट थिंक स्पिन बॉलिंग में आशीष का कुछ इफेक्ट है। तो ये सारी चीजें हैं ओवरऑल। मतलब देखना होगा कि आशीष नेहरा और बाकी जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक्चुअल क्या इम्पैक्ट है। एंड मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी उनके ऑनर्स की, लाइक सीवीसी कैपिटल, लाइक क्या करते हैं वो लोग, क्योंकि बेचारा गोयन का काफी कोशिश करता है बट कुछ नहीं होता, और सीवीसी का ओनर हमें बाहर दिखते भी नहीं है, मतलब कौन चला रहा है क्या कर रहा है। एंड यू सी दे गोइंग फॉर मिरेकल्स। Yeah, mostly they are. इसीलिए कुछ नहीं होता ना। क्या आवाज नहीं आया वो बोलो। जिनका ओनर जमीन पे घूमता रहेगा तो उनकी टीम प्रोग्रेस यहाँ से करेगी। तुम खुद ही लड़ने चले आ रहे हो अपने प्लेयर से, तुम्हें लग रहा है तुम जीत जाओगे, Yeah, कहाँ से कुछ होगा। और एंड ऐसा नहीं कि उसकी टीम खराब खेली थी, मतलब एलएसजी को उसने 2 सीजन में थर्ड लेकर आया था। ये क्या हुआ यार। 2 नंबर क्वालिफाई किया था 2023। लास्ट ईयर ही नहीं हाँ, किया 2 बार थर्ड लाया, तीसरी बार भी वो थर्ड था, पर रन रेट पे 7 था वो। मतलब चौथी और सातवीं टीम के पॉइंट सेम थे। तो ऐसा नहीं कि भाई खराब खेली। अब तुम चाह रहे हो कि भाई जीटी जीत गए तो मैं भी जीत जाऊं, तो भाई फिर तुम बैठे रहो। Yeah, anyways, we discussed about a lot of teams and lot of things, but yes, I want to see your perspective on CSK this season so far, and why has CSK just given up like previous few games? Like they're saying it and showing it both. So what is going on? क्योंकि ये मतलब प्लेयर परफॉर्म कर ही नहीं रहे ना। मतलब अगर आपकी टीम में सिर्फ 2 या 3 प्लेयर एक मैच में परफॉर्म करे तो आप जीत नहीं सकते, सीधी सी बात है। ये होता है कि चलो 2-3 लोग फॉर्म में नहीं है, जैसे धोनी ने ऐसी बोली कि भाई पहले हमारे साथ ऐसा होता था कि ठीक है शेन वॉटसन पूरा सीजन नहीं खेला, बाकी टीम परफॉर्म करी, वो आखिरी तक ढोगा, उसने फाइनल जिता दिया। ठीक है, वो क्या कहते हैं यार, वो लग्जरी अब खत्म हो गई। क्योंकि मतलब जैसे रचिन पे हमारा डिस्कशन चल रहा था, मे बी हैड सीएसके बीन विनिंग दे वुड हैव कंटिन्यूड विद रचिन, राइट, नॉट चेंजिंग एंड चॉपिंग। बट वो चीज़ अब नहीं कर सकते, तो वो लग्जरी खत्म हो गई, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो ऐसा, तो आपको नए प्लेयर लाने ही पड़ेंगे। मोस्ट लाइकली आई डोंट सी शेख रशीद गेटिंग अनदर गेम। I'll see Andre Siddharth getting his debut.
क्योंकि भाई उसने भी एक इनिंग खेली, उसके बाद कुछ करा नहीं, राशिद ने भी सच। तो वो चीज है। पर या वही है, मतलब आज का गेम जीत सकते थे। आज तो धोनी की गलती है पूरी, वेरी पुअर कैप्टन कि 50 पे 3 है, द मेन 3 बैट्समैन आर आउट, या देयर वाज नो सेंस इन गिविंग सैम करन दैट सैम ओवर। करन दो, या वी विकेट डिस्कस दैट। विकेट गिरा है, व्हाई आर यू ट्राइंग टू टेक द गेम टू द एंड, क्लोज द गेम। या गिव मतलब ये पथिराना तो भाई दो ओवर, लाइक पथिराना इतना लेट आ रहा है, 12वीं हाँ, ओवर पे आ रहा है वो। वो वो वही चीज है ना कि ये आज भी 2016 में जी रहे हैं कि ड्वेन ब्रावो है हमारा, ये आखिरी 14 ओवर से ही बॉलिंग करेगा। भाई मुंबई भी बुमराह को बीच में ओवर देता है, ऐसा नहीं है कि डेथ में ही करा रहा है 4 ओवर वो। या थोड़ा तुम बाकी बॉलर पे भी अपने वो रखो। तुमने जडेजा को और बचा के क्या उखाड़ लिया भाई, करन का ओवर उस टाइम करा के। या तुम एक ओवर पेसर का निकाल देते, तुमसे नहीं हो रहा था तो। एंड ऑल्सो लाइक कंबोज तो अच्छा ही कर ही रहा है, बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ हाँ पीपल। कंबोज बोल रहे तीन, हाँ मतलब पथिराना का तो मुझे सेंस बन ही नहीं रहा ना, क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज बोली थी स्टार्टिंग में सीजन के। फैजान प्लीज म्यूट। सीएसके फैजान ने फैन आते ही बोल एको रहा है सलाह प्लीज दिया। म्यूट। तो वही कि मतलब एलिस को क्यों नहीं खिला रहे, एक मैच खिला के उसको ड्रॉप कर दिया, उसका कोई सेंस नहीं बना। और वो भी जो आपकी टीम जीती थी पहला मैच, हाँ, अच्छा व्हाई बॉलिंग करा व्हाई उसने। चेंज व्हाई चेंज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। या वेरी वेरी सिंपल, वेरी बेसिक क्रिकेट रूल, व्हाई चेंज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। वो तो ऋतुराज जस्ट की जस्ट गलती टू, थी ना, वो तो धोनी की क्या गलती अब थी। वो गलती ऋतुराज की हो, धोनी की हो, स्टीफन फ्लेमिंग की हो, सी बिकॉज हर आदमी का देखो एक वो पीरियड होता है। अब स्टीफन फ्लेमिंग क्या सोच रहा है कि भाई मैं 18 साल से कोच, मैं जिंदगी भर से कोच करता रहूं। आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट। देयर या इज अ चेंज रिक्वायर्ड फ्रॉम द टॉप। दिस इज व्हाट आई सी, व्हाट आई फील। एंड वी आल्सो डिस्कस क्योंकि लाइक जैसे मे बी जिस रचिन को। तरीके से वो इंटरव्यू दे रहा है आगे, वो फील मुझे वैसी आती है कार्लो एंसेलोटी वाली रियल मैड्रिड की, कि भाई बस टीम में भेज उतार दे रहा हूँ, बाकी फील्ड पे अपने लौंडे कर लेंगे कुछ ना कुछ। या मे बी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट गेम से, क्योंकि आज सैम करन को खिलाने का कोई मतलब नहीं है, बॉलिंग भी अच्छी नहीं की, बैटिंग भी नहीं की, उससे अच्छा रचिन को एक चांस दे देते हैं एंड उसको एक नहीं वन डाउन ऐसा भेज दो। नहीं है, उसको उसको खिलाने का वो नहीं है। ठीक है, रचिन को काफी चांसेस मिल गए, सैम करन को खिलाना ठीक था, ठीक है, उसका बैटिंग ने वन डाउन खिलाया कि हाँ वो ऊपर एक जना तेज मार ले, उसका वो कोशिश था। एंड फॉर इवन नेक्स्ट गेम आई वुड लाइक कि सैम करन को खिलाओ एक ओवर दो भी, बट सिचुएशन देख कर दो। ठीक है, तुमने पावर प्ले में एक ओवर दिया, ठीक था, उसके बाद 3 विकेट गिर गए हैं, तुम्हें प्रेशर बनाना है वहां पे। तुम अपने 6 में सबसे वीकेस्ट बॉलर को नेक्स्ट ओवर किस हिसाब से दे रहे हो? एंड दैट टू जब तुम्हारे पास ओवर्स की कमी नहीं थी कोई, you could have simply tossed the ball to Noor Ahmed then and there. या Why create the pressure on other bowlers after a 15 and over? या वो पूरा गेम ही बदल गया ना वहाँ पे। अगर वो ओवर 14 की या 4 रन का होता तो जहाँ 5 ओवर में 40 से 5 ओवर 50 रन बचते, गेम बिल्कुल अलग होता। यस यस सारा सारा देखो गेम यही है। धोनी का नाम, धोनी फेमस इसीलिए कैप्टेंसी के लिए, क्योंकि उसने कैप्टेंसी से मैच जिताए हैं अपनी, बॉलिंग चेंजेस और यही सब चीजें, जैसा हम हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को अब देख रहे हैं। दे आर फॉलोइंग द सेम टेम्पलेट, दे आर गोइंग हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। जो बैट्समैन आए उस हिसाब से बॉलर लगाओ। भाई क्रिस गेल को ऐसे ही आउट करता था ना, कि पहला ओवर आते ही अश्विन, कौन सोच रहा है कि क्रिस गेल के आगे स्पिनर दिया जाएगा कि छक्के मारे, 3 बॉल में आउट। तो वो चीज दूसरी टीम इम्प्लीमेंट कर रही है, पर धोनी बुढ़ापे के साथ खुद भूल चुका है। सॉरी टू से बट दैट्स अ फैक्ट। Yeah, I think maybe still Rachin can given one down chance because that's what he plays for New Zealand. So that is his क्योंकि उसका swing से वो खेल नहीं पा रहा swing को, और just भाई bat उठा इतना रहा भाई तो है। वो इंडिया में बहुत मॉक स्विंग नहीं मॉक होता है। ऑक्शन की, 2 ओवर के बाद तो स्विंग खत्म हो जाती है इंडिया में, इतनी स्विंग कहाँ होती बॉल इंडिया में। वो आई तभी थिंक आउट हो रहा है वो ना, मॉक बट ऑक्शन जो है ना, मॉक ऑक्शन के हिसाब से हमें बेथल और रचिन नहीं फिट नहीं नहीं, करने, बिकॉज वो सी, अगर बन अरे रहे तो रचिन फिट होंगे। इंटरनेशनली भी अच्छा बैट्समैन है ना, लाइक यार, नहीं और बट सी, प्लेयर ऑफ द अगर टूर्नामेंट आपके, चैंपियंस ट्रॉफी, सोचो तो बैटिंग तो क्या कर रहा है वो। नहीं वो, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 10 मैच में आपका प्लेयर नहीं चला। हम्म 10 मैच में आई थिंक 8 मैच तो रचिन खेला ही है। बीच में एक कोई मैच में वो कॉनवे को खिलाया था उन्होंने, और अभी ये वाला मैच हटाया। तो 8 मैच में आप परफॉर्म करे हो, 2 मैच में इनिशियली, उसके बाद आप 6 मैच लगातार खराब किए हो। सेकेंड थिंग इज कि आप वो सुदर्शन वाली टेम्पलेट भी नहीं कर रहे कि भैया मैं एक एंड पकड़ रहा हूँ आप आके मारो, आप वो भी नहीं कर रहे हो। और आप जितना खेल रहे हो उसमें काफी स्लो हो रहे हो, मतलब एक हाँ वन ये थर्टी 120 का स्ट्राइक रेट भी नहीं है, तो फिर तो आपको हटाएगा ही ना। नहीं, एटलीस्ट वन डाउन भेज सकते हो उसको, तो उसको वही रोल दे दो जो न्यूजीलैंड में देते हो। सो मे बी नहीं, देन वन यू डाउन कैन। में भी वो स्लो ही खेलेगा ना। वो जो स्लो खेल रहा है वो भी एक रीजन है कि आप 40 पे 50 बना रहे हो। भाई वो हर चीज कोई नहीं स्लो चलेगी। खेल रहा है, हम्म तेज खेल कौन रहा है? माई भाई खेल रहे ना।
माही इनको तो भाई माही कहाँ भाई खेल रहे हैं यार, माही माही भाई के भाई साथ देखो माही भाई दिक्कत ऑक्शन में चेन्नई खेल वालों गए। के साथ वही है कि वो माही भाई इतना ऑक्शन में स्टेट ऑफ खेल गए कंफ्यूजन वो। में आ चुके हैं। जैसे धोनी ने अभी आज शॉट मारा, वो हंसते हुए जा रहा था कि उसे पता था कि भाई मैं पूरी ताकत से मारता बाहर चली जाती। उसने आधे मन से मारा, रोकू मारू, ना रोक पाया ना उसकी फ्लाइट कंट्रोल कर पाया, सीधा बाउंड्री पे हाथ में दे दिया। वो तो उम्र हो गई है अब तो दिखेगा ही सही। अब वो उमर बोल लो चाहे जो बोल लो, क्योंकि देखो उसको भी वही उस टाइम वो मैच देखो मेंडिस का था, वो मेंडिस कैच ना लेता मैच सीएसके जीती हुई थी भाई, वो उस कैच ने मैच बनाया है। या मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से तो मेंडिस था। मेंडिस ही था। अरे आज एक मैच जीत भी जाते अगर सीएसके तो कौन सा नेक्स्ट 5 जीत जाती और प्लेऑफ्स में जाती। अरे यार फिर ये- तुमने देखा है भविष्य, मैंने देखा है। आज की बात करो ना, आज क्या हो नहीं रहा था। मैंने भविष्य नहीं देखा लेकिन मैंने थाला को देखा है ना। ऑक्शन में उसने वो प्लेयर लिए। आप ऑक्शन जाके देखो, जो हम्म। प्लेयर उसको चाहिए थे जिस पे उसने बीट करा सारे मिले। ऐसा तो कोई है नहीं कि जिस पे बीट वॉर गया और वो नहीं मिला। 9 करोड़ में अश्विन लिया उसने, क्या उखाड़ ला उसने। तो माही भाई अब हो गए हैं बूढ़े। तो अब उनको क्या है कि वो कौन सा होता है ना एक डिपार्टमेंट के, बस वहां पे सलाह दो आप। और पहली बात तो माही भाई की सलाह भी नहीं चाहिए अब। माही भाई को बोलो कि झाड़ू खाए। वो बीजेपी में पता है जब कोई लीडर बुढ़ा हो जाता है उसको नहीं मारते उन्हें हैं। सीरियस नोट देखो, अगर आप जो है पुराने टेम्पलेट पे चल रहे हो। एक 40 साल का बुढ़ा आदमी आपको बता रहा है कि 2025 में कैसे क्रिकेट खेलना है, कैसे प्लेयर्स लेने हैं, वो उसी के एज के खिला रहा है। अश्विन को 9 करोड़ लेने का कोई सेंस नहीं है। मैं कोई गली का क्रिकेटर लेके आ जाऊंगा तो वो ज्यादा एफर्ट डालेगा 90 लाख रुपए में भी। अश्विन नहीं करेगा 9 करोड़ में। अरे यार यहाँ सब तुम उसकी 9 करोड़ की क्या बात करो, जितने प्लेयर रिटेन करे थे वो भी मार्केट में सस्ते मिल जाते। ऐसा किसी ने कोई बहुत तोड़ परफॉर्मेंस नहीं दिया लास्ट ईयर के, तो तुमने 15 15 नहीं 12 तो करोड़ वही तक बात है रिटेन ना। करा। जो पथिराना को ये मलिंगा समझ के लाया था, मलिंगा की एक लट के बराबर भी नहीं है वो। जो उसकी बालों की लट है ना। बात तो सही मुझे यार, तो इतने वाइड डाले, इतने एक्स्ट्रा दिए। लास्ट लास्ट नहीं मैच अरे भी अच्छा नहीं परफॉर्म किया। वो बस एक तुक्का है। जैसे हमेशा जो है धोनी का तुक्का हो जाता था सेट और वो जीत जाता था। आप सोचो कि बेन इल्फेनास नाम का एक बॉलर हुआ करता था इसकी टीम में, मैंने खुद ने देखा है। वो उसके इंटरनेशनल करियर में कुछ इतना ज्यादा नहीं उखाड़ा है, बस वो धोनी की टीम में खेल गया वो तो, और वो उसको जीता गया। क्रिस तो मॉरिस ये था। धोनी का उसके बाद एक डब बॉलिंजर था, उसके पास एलबी मॉर्कल था। ये लोग अपने अगर इंटरनेशनल जो मेन करियर से उनका वहां देखोगे तो इतने कुछ हाथ स्टेट्स नहीं है उनके, लेकिन वो उनके नसीब है। वो हो सकता है कुछ ऐसी जड़ी बूटी पिलाता होगा धोनी इनको ले जाके अंदर, उसकी रेसिपी राइडू के पास होगी। लेकिन बस वही है कि इसका नसीब चलता था। अब नसीब ने भी मुंह फेर लिया ऐसे, क्योंकि इसका नसीब 2023 तक ही वैलिड था। अब वो भी काफी रोस्टिंग हो भाई गई। देखो, बेन हिल्फेनॉस और फिर बॉलिंगर में मैं बता दूं तुम्हें कि बेन हिल्फेनॉस ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत तगड़ी पेस ट्राई होती है, उसका एक पार्ट था। मिचेल जॉनसन, बेन हिल्फेनॉस एंड रैन हैरिस। हाँ। ठीक है, वैसा वैसा बॉलर नहीं था, टेस्ट का बहुत बड़ा बॉलर था। ये बात है कि चेन्नई ने उन दोनों प्लेयर्स को उनके पीक पे यूज करा, डॉग बॉलिंगर को उसके पीक पे, हिल्फेनॉस को उसके पीक पे। ये मीडियम। वो पॉइंट था कि चेन्नई को उन पीक प्लेयर उनके पीक पे मिले। जैसे टिम साउथी था भाई, टिम साउथी ने जितना परफॉर्म सीएसके में करा, आई डोंट थिंक किसी और टीम ने उसने उतना परफॉर्म करा है। नहीं मतलब वो 2015 16 17 वाला जो उसका पीरियड था, 2015 वर्ल्ड कप के बाद, वही उसका पीक था। तो वो चीज रहता है कि आप किस प्लेयर को कब खरीद रहे हो। अब वो चीज हो गई कि वो धीरे धीरे उनका जो वो परफॉर्मा बनता चला गया कि हम बिग नेम्स रिटायर्ड प्लेयर्स लेंगे कि जो हमें पूरा सीजन दे सकें और आराम से खेल सकें बिना किसी सादर्दी के। क्योंकि उनको शायद एक दो बार वो चीज़ें हुई थी, जैसे बेन स्टोक्स वाला हुआ था कि तुमने करोड़ रुपए लगाए और उसके बाद वो खेला नहीं, ना परफॉर्म कर पाया, एक दो मैच खेला फिर बाहर बिठा दिया। तो दे पुट देयर मनी ऑन प्लेइंग दोज प्लेयर्स हु दे न्यू दे कैन प्ले एंटायर सीजन विदाउट एनी इशू। वो चीज़ है, बट ठीक है, वो स्ट्रैटेजी टाइम के हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ेगी आपको, वरना आप हारते रहोगे, ऑल्सो मैंने वरना कभी ना कभी तो बबल फटेगा। बाकी सबको भी एक क्वेश्चन पूछा था कि हमने देखा है कि बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं दूसरे टीम्स में भी जो एंड ऑफ द आईपीएल आ सकते हैं और डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे अभी तो नटराजन नहीं आया है, अभी तो जेरर कुर्सी आएगा जीटी के लिए। सो देर आर अदर प्लेयर्स एज वेल, बेथल भी आ सकता है आरसीबी के लिए। सो देर आर प्लेयर दैट कैन कम एंड मेक अ डिफरेंस फॉर अदर टीम्स। सो हु डू यू थिंक विच अदर प्लेयर्स आर देयर आउट देयर फॉर द टीम्स? नटराजन इंजर्ड है, आई वाज नॉट अवेयर।
या अभी वो हो गया क्लियर, तो आई गेस वो आ सकता है नेक्स्ट फ्यू गेम्स में. Okay, because I was also confused कि how come is Natarajan not playing? या ही हैड सम निगल. But ठीक है, I still think दिल्ली को एक बैग सब्स्टिट्यूट ले लेना चाहिए था ब्रुक का. नॉट श्योर उन्होंने क्यों नहीं लिया है. बट गुड थिंग कि दे आर इंडियन प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग, तो उनको वो दिक्कत पड़ी नहीं है. तो वैसा सीन है, अगर वो हार रहे होते तो ऑब्वियसली दिक्कत होती है. करुण नायर उन्होंने फाइनली खिला लिया एंड दैट पेड ऑफ. या बिकॉज आज हमने बट देखा कि स्टिल आई थिंक उनके पास एक स्लॉट है बैट्समैन का. आई थिंक वो एक मैच उन्होंने डॉर्मन फरिया खिलाया था, वो कभी समीर रिजवी खिला रहे हैं. आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर फाफ टू रिटर्न. वो फाफ खेलेगा अपनी जगह पे वापस आके. सो वही स्ट्रेटजी है. मतलब ये कैसी बात हुई कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि तुम कभी भी किसी का भी रिप्लेसमेंट ला सकते हो. सो लाइक डीसी को ऐसा लगा कि लास्ट तो गेम में करना ही है क्वालिफाई, तो किसी को भी ले आएगा वो. सो व्हाट आर द एक्चुअल रूल्स? आर देयर एनी रूल्स फॉर इट और लाइक इट्स? आई डोंट थिंक सो. कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइमलाइन है कि ये तो आपके उसके पर्सनल उस पे है कि आप कब करना चाह रहे हो. मतलब आइडियली आई वुड हैव डन दैट, क्योंकि उसमें रूल कुछ ऐसा रहता है कि नेक्स्ट सीजन आप उसको रिटेन कर सकते हो प्लेयर को जिसको रिप्लेसमेंट में लाओगे. तो उन्होंने वो काम क्यों नहीं करा वो समझ नहीं आया. मतलब उनको नहीं एक्सपीरियंस वाला कोई ज्यादा, दे कुड हैव ब्रॉट समवन यंगर like that guy, Owen Sky, who was the top scorer of BBL, right? They could have tried him because anyways उनका फ्रेजर मैकगक नहीं चला है सीजन, तो they could have used that kind of another player at the top कि भाई देखे चले यही चल जाए. आई थिंक उनको बेन डकेट लेके आना चाहिए था. अभी जो लास्ट सीरीज हुआ था इंडिया इंग्लैंड का, बेन डकेट मतलब इतना ज्यादा कुछ था नहीं, बट इंडियन पिचेस पे वो अच्छा दिखा था. तो आई थिंक वो फ्रेगर की जगह उसको ला सकते थे, हैरी ब्रुक की जगह उसको ट्राई कर सकते थे. Van Dijk is a very good player but not in the same mold as Fraser McGurk. तो मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि फ्रेजर मैकगर के लिए मिस्टर ओवेंस वुड हैव बीन द एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट, राइट? बट भाई ये बीबीएल की क्रेडिबिलिटी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके टॉप 5 में स्टॉनिस और मैक्सवेल थे रन स्कोरर्स में, जो हम देख रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हैं. तो वो भी एक इशू है. उस टॉप 5 में मैक्सवेल था, स्टोइनिस था, डेविड वार्नर था. सो दैट वाज अ वेरी फनी टॉप 5 बीबीएल का, कि जो जहाँ यहाँ आईपीएल में कोई पूछ भी नहीं रहा उनको. तो वैसा सीन है. बट लेट्स सी. मतलब हाँ, चेन्नई का सीजन तो ओवर है. दे हैव गिवन अप, इट्स क्लियर. दे आर नॉट इवन ट्राइंग नाउ. मतलब मे बी वहाँ रन बन जाते शायद, जो जैसा ब्रेविस खेल रहा था कि 170 175 हो जाता, स्टोरी कुड हैव बीन डिफरेंट. बट यार आई नॉट थिंक आज नॉट मतलब कैप्टनसी टीम इतनी कॉम्बिनेशन खास नहीं आज है. आज के विकेट पे 3 स्पिनर कैसे नहीं खेल रहा ये समझ नहीं आ रही बात. या नहीं, ट्रू. वही अगर धोनी सैम की करन खिला लिया था कैप्टनसी तो यू लेक कुड कर हैव रही है यहाँ ड्रॉप पे. पथिराना. सॉरी. धोनी की कैप्टनसी खराब हो रही है. हाँ, मैंने वो वो आते ही कुछ चीज बोली कि कैप्टनसी ही खराब है. क्योंकि धोनी का नाम उसकी कैप्टनसी की वजह से ही है, बैटिंग वजह से नहीं है नाम उसका. आई थिंक वो क्रिकेट चीज है. बहुत फास्ट फेस में चेंज हो गया है फ्यू इयर्स में, सो दैट वो कोप अप नहीं हो पा रहा है प्रीवियस आइडियोलॉजी के साथ. मे बी अगर सिर्फ 11 होते प्लेयर, अगर इम्पैक्ट रूल भी ना होता, तो शायद धोनी अच्छी कैप्टनसी कर लेता. इम्पैक्ट रूल से तो हाँ काफी फर्क पड़ा ही है, क्योंकि वही है कि सीएसके अभी भी उस टेम्पलेट पे खेल रही है जिसपे इंडिया इंटरनेशनल T20 खेलती थी आज से 2 साल पहले. या जो वो हम सेमीफाइनल हारे थे, याद होगा सबको. 160 रन 16 ओवर में चेज कर दिए थे इंग्लैंड ने. तो इनका टेम्पलेट अभी वही चल रहा है. 160 बना लो, हो जाएगा. वही है कि पहले वो 160 के 180 बना लेते थे, फिर फील्डिंग अच्छी करते थे, बॉलर अच्छे होते थे, तो डिफेंड हो जाता था. अब वो चीज़ नहीं होगी. मतलब वैसा भी नहीं खेलना है कि हैदराबाद वाली हालत हो जाए कि हर बॉल आके मार रहे हो और आउट होके चले जा रहे हैं. बट यू नीड टू असेस, यू नीड टू प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. इनके पास वो प्लेयर ही नहीं है जो अच्छे विकेट पे आते ही मार सके. जैसे मुंबई वाला मैच हमने देखा, शिवम दुबे के 11 बॉल पे 4 रन थे. भाई उस विकेट में था क्या? सिंगल तो ले. सामने ब्लॉक क्यों कर रहा है? घुमा दो बैट्स, ग्राउंडेड घुमा तो. अच्छा खासा स्टार्ट पे तुम 11 बॉल पे 4 रन बना के क्या कर रहे थे वहां पे आके? मात्रा आई ने तुम्हें थिंक स्टार्ट तो दे दिया था. सीएसके के पास एक बहुत अच्छा चांस था अगर वो आरसीबी की स्ट्रेटेजी फॉलो करती कि सिर्फ ऋतुराज को रिटेन करती और बाकी फुल ऑन ऑक्शन के अंदर जाती एक बड़ा पर्स हाँ, लेके. वो तो गलती तो हुई है. वो ऋतुराज और धोनी आई थिंक, हाँ, क्योंकि अनकैप था, 4 करोड़ में आ रहा था, तो वो उतना ही रिटर्न करना था. दुबे, वथिराना, जडेजा कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इवन वही तुम आरटीएम से वापस ले सकते थे. ऐसा नहीं था कि भाई वहाँ पर आरटीएम ना रहता. यू हैड दैट अगर ऑप्शन, उनको राइट? बेटर कैप्टन ऑप्शन चाहिए था तो मुझे लगता है कि अगर वो कुछ भी रिटेन नहीं करते, फुल ऑन भी जाते,
तो उनको श्रेयस अय्यर एक बेटर कैप्टन मिल सकता था, फ्यूचर कैप्टन जो उनको यार ज्यादा नहीं तो भी। 27 करोड़ तो ओवर प्राइस है क्या? हाँ 27 करोड़ तो कोई किसी को नहीं देना चाहिए। तो हमें KL राहुल मिल सकता था, बाकी तो छोड़ दो। 15 करोड़ में तो KL राहुल मिल हाँ, जाता, KL राहुल क्या मिल जाता। बुरा था? नहीं, वही बात है कि अगर वो हम्म। सिर्फ ऐसा ऐसे कोई क्वालिटी नहीं थी उनके रिटेंशन में। वो पथिराना को बोल रहे हैं कि ऐसा हमने कुछ यूनिक का प्लेयर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना ही दुबे दुबे भी उनको ऑक्शन में मिल ही जाता अगर वो जाते तो। हाँ, ये मतलब अगर वो अगले साल भी दुबे जडेजा को रिटेन करते हैं तो फिर इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, सीधी सी बात है। नहीं बट अब मतलब उनके साथ खराब ये हो गया है कि नेक्स्ट 2 सीजन भी अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बाकी 9 टीम्स है उनका हम्म। ओवरऑल स्क्वाड लॉक हो चुका है, तो बहुत ज्यादा हाँ, सफर ये मुझे तो है। देख। मिनी मिनी ऑक्शन में फिर प्राइस तो इन्फ्लेट होगा ही होगा, ये चीज तो इन्होंने सोचनी ही चाहिए थी अब तो कि भाई। बस वो जो बचे कुचे प्लेयर्स है वही मिलेंगे उनको बाकी नेक्स्ट 2 सीजन। अब मेगा क्योंकि ऑक्शन हाँ, में सीधी जाने। सी बात है। अब तो वही है कि जो नए प्लेयर्स आएंगे या जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या जो कहेंगे भाई मुझे छोड़ दो, नहीं खेलना, जैसे वॉशिंगटन सुंदर वाला केस है कि भाई उसको इंडिया टीम में जाकर मिलती, IPL में नहीं खेलने को मिलता। सेम स्टोरी हैदराबाद, सेम स्टोरी गुजरात। तो वो बोल सकता है भाई कि मैं छोड़ दूं। राजस्थान से काफी न्यूज आ रही रिफ्ट, प्लेयर रिफ्ट की, तो वो सब चीजें हैं, है ना? तो वो सब इश्यूज हैं कि क्या है क्या नहीं है। हम्म। मुश्किल लग रहा है बट ऑनेस्टली मतलब आई डोंट सी व्हाट डायरेक्शन CSK is going to go from here. ऑल राइट। I can't comment anything right now. सो लास्ट एक क्वेश्चन दोनों के लिए कि अब इस पॉइंट के बाद आफ्टर द हाफ ऑफ द सीजन इज ओवर, व्हाट डू यू थिंक हु इज गोइंग टू क्वालिफाई राइट नाउ? 4 टीम्स दैट यू कैन प्रेडिक्ट दैट क्वालिफाई। देखो, मेरी 4 टीम थी, उसमें 2 तो जा रही हैं हम्म। ऊपर हैं जो फर्स्ट 2 पे, ठीक है। CSK बाहर हो गई, मुंबई मोस्ट लाइकली क्वालिफाई कर जाएगी जिस तरीके से उनकी टीम है। जो मैंने कहा था कि ऑन पेपर दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट 11, तो मेरी 4 में 3 टीम तो चली जाएंगी। CSK खैर मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये हो जाएगा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ कि कोई भी नहीं चल पा रहा, कोई नहीं खेल पा रहा, बट ठीक है, होता है। तो फोर्थ कौन सी 4 लगता टीम है? में फिर वही है, पंजाब और RCB में से ही एक मुझे दिख रही है, बाकी तो मुझे नहीं दिख रही कि कोई आप आएगी। इन दोनों में से एक दिख रहा है, पंजाब या RCB। एंड whoever holds their nerves वाली चीज है। एंड फैजान, यू हु डू यू थिंक? नहीं, ऑब्वियस से फर्स्ट और सेकंड स्लॉट पे तो जीटी और डीसी ही कंफर्म दिख रहे हैं। थर्ड पे मुझे लगता है कि आरसीबी लॉक कर लेगा थर्ड प्लेस। फोर्थ के लिए आई थिंक पीबीके और एमआई। और एलएसजी का कह नहीं सकते, मतलब एलएसजी जो मैचेस जीती है वो लक से ही जीती है। लक फैक्टर बहुत काम आया है उसकी, जो विनिंग मैचेस है। तो फोर्थ स्लॉट के लिए ये 3 मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी ये है कि अपकमिंग मैचेस कौन सी टीम के साथ है उनके। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो एमआई दिख रहा है, बट पीबीकेएस का जैसे अगला मैच केकेआर से, केकेआर ऑलमोस्ट फिनिश टीम है, उसका भी सीएसके जैसे ही हाल है। वो 3 मैचेस जीत गई है, लेकिन उसका कुछ ऐसा परफॉर्मेंस देखने मिला नहीं है। तो जो सैटरडे संडे को जो मैच है उसका केकेआर के साथ, होपफुली वो भी जीत जाएगी। और दिल्ली वाला मैच अगर आरसीबी जीत जाती है तो मुझे लगता है कि वो थर्ड पे तो फिनिश कर ही देगी, और अगर थोड़ा और बेटर गई तो वो सेकंड पे भी आ सकती है। बट फर्स्ट पे तो मुझे जीटी ही लग रही है, क्योंकि जीटी का नेट रन रेट बहुत स्ट्रांग है। और ओवरऑल टीम, वही बात है कि उनके उनके खिलाफ कुछ गलत जा ही नहीं रहा है। वो जो भी करने की सोचते हैं वो कर देते हैं, और वो उनका पॉजिटिव हो जाता है। फर्स्ट पे जीटी, सेकंड पे डीसी, और थर्ड पे आरसीबी, और फोर्थ स्लॉट पे पीबीकेसी या एमआई। ऑलराइट, मुझे भी लग रहा है कि शायद, मैं तो नहीं चाहता एमआई आए, बट इसलिए मैं पीवीकेएस बोलूँगा फोर्थ पे। बट हाँ, आई नहीं, वो वही बात है कि अगर एमआई आ जाता है फिर वही है कि वो एलिमिनेटर तो ऑब्वियसली जीत ही जाएगा, जीत फिर जाएगा सेकंड क्वालिफायर। तो इसलिए अगर एमआई नहीं आता, ऐसा नहीं कि वो टीम खराब है। कोई नया टीम जीतती है तो एक गेम स्पिरिट बना रहता है ऑडियंस के अंदर भी, कि नहीं यार, हमेशा वही टीम्स नहीं जीतती, कुछ कोई नए प्लेयर्स भी आते, नई टीम्स भी जीतती। तो अगर एज ए स्पिरिट ऑफ गेम की उसमें देखा जाए, आई थिंक एमआई को नहीं क्वालिफाई करना चाहिए। चारों जो नई टीम है इनको क्वालिफाई करना चाहिए। या जीटी ओवैसे एक बार जीत गई है, बट आई थिंक अगर शुभमन गिल जीटी को आईपीएल जिता देता है तो एक एज ए इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडर हमें मिल सकता है। फिर उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, मैं इतना बड़ा टूर्नामेंट जिता सकता हूँ एक नॉर्मल टीम के साथ। कोई बहुत ज्यादा बड़े नाम नहीं है उसकी टीम में, वो खुद है, उसके बाद कोई और नहीं है।
तो वो देखना होगा, लेकिन मैं भी नहीं चाहता टू बी ऑनेस्ट कि एमआई क्वालिफाई करे। या बिकॉज एटलीस्ट 3 टीम्स जिन्होंने नहीं जीता है आईपीएल वो तो एटलीस्ट अगर चली जाएंगी तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि एक नया विनर मिले हमको. बट या it seems unlikely if GT is in the same form. But let's see if teams can exploit GT's middle order, then maybe there can be some issues. But I think GT का bowling भी अच्छा है. So alright, that was the episode of Expert Expats, guys, and see you soon later. Do subscribe to the channel and well, do comment in the comment section as well. Which teams do you think will qualify? According to which 4 teams will qualify, or maybe some team can come back from the bottom half of the table. So thank you so much, guys. Stay tuned and do check out all the episodes of Expert Expats previously as well to get more insights on how we are shaping the journey of IPL, how we are covering it. So thank you so much, guys. Bye bye. See you. Take care and keep watching cricket and keep giving that mental trauma to yourself. Bye.